Okay. So, students, I hope that my voice is clear to all of you, and all of you can see the slides properly. So, I hope that my just hang on for a moment. See the slides properly. So, okay. So let's start. Let's begin. So in the previous class, we had talked about the diffraction of X-rays from a crystalline solid. Now we just got to know कि अगर एक crystalline solid के ऊपर अगर एक X-ray आके गिरता है, तो diffraction कैसे होता है और मतलब what are the conditions which are required for the diffraction. तो इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था. आज हम लोग जो बात करेंगे वो ये है कि अगर डिफ्रैक्शन होता है यार, मतलब if the X-rays are getting scattered by the various atomic arrangements in a crystalline solid, so what will be the amplitude of the scattered wave at a particular point B. अगर हमारे पास एक पर्टिकुलर पॉइंट बी है तो इस पर्टिकुलर पॉइंट बी में तो स्कैटर्ड वेव का एम्पलीट्यूड क्या होगा उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे. तो उसके लिए हमें एक फिगर की जरूरत है, जो फिगर हम लोग अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. जरा यहाँ पे देखो, मान लो ये जो है तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, some sort of arbitrary structure I'm gonna draw. Suppose that's your crystalline solid. ये तुम्हारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है और यहाँ पे तुमने एक्सरे का सोर्स रखा है एंड जस्ट हियर यू हैव पुट द सोर्स ऑफ एक्सरे एंड ऑफ कोर्स यू नो दैट लाइक सोर्स जो है एक्सरे का वो काफी 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 दूर पे रखा गया है एंड जस्ट बिकॉज इट इज प्लेस्ड एट वेरी फार, सो डेफिनेटली यहाँ से जो वेव्स जनरेट होते हैं वो वेव्स तो सर डेफिनेटली स्फेरिकल वेव्स होंगे. So let me just draw the spherical waves. So these are basically the spherical waves which are being generated from the source of X-rays. These are my spherical waves which are being generated from the source of X-rays. So suppose this is my X-ray source. This is my X-ray source जहाँ से X-ray generate हो रहा है, but these are my spherical waves. So this spherical waves has been generated, but just because this source is placed very very far from the crystalline solid, तो इसी वजह से जब ये spherical waves यहाँ पे crystalline solid के ऊपर जाके गिरेगा तो वो more or less plane waves बन जाएंगे. ठीक है, तो यहाँ पे let me draw first a point of view. Suppose I'm just trying to get all the calculations, so I need a reference line, so I'm drawing the reference line like this. Okay, so this is some reference line which is actually passing through the crystal from this point, suppose. Okay, it's passing through the crystal from this point, and I know, hang on, and I am drawing another set of point which is this, which is the point P in the crystal. This is another point P in the crystal. There's another point P in the crystal. And the distance of this point P from the point where this line is actually intersecting the crystal is, suppose I'm just drawing this as R. So if I say that this is my R vector, and I'm saying this is my capital R vector. What is my capital R, by the way? The capital R is this point. यहाँ से ये वाला जो line है, I think मुझे वैसे draw करना चाहिए. Like these are the lines which I should draw by
And should draw this line by this. मान लो यहाँ पे ये पॉइंट है, यहाँ से जाता है इस क्राइसिस को, यहाँ पे ये इंटरसेक्ट करता है, फिर इसके बाद से ये क्राइसिस के अंदर से जा रहा है, तो ये ऐसा. तो the point is actually intersecting the crystal at this point. Suppose this I'm calling this point as O. तो अगर इस पॉइंट का नाम मैं O रख रहा हूँ और इस पॉइंट का नाम मैं P रख रहा हूँ, so P to O distance is R, and from this, which is the source of X-ray, I can call it as Q. So Q to O, that is capital R, and of course this distance, which I can see here, this distance is source से point P का जो distance है, source से point P का जो distance है, I mean I'm talking about, of course, this distance I can say as capital R plus small. तो जरा यहाँ पे देखो, ये अगर तुम्हारा स्मॉल r है, ये अगर तुम्हारा कैपिटल R है, तो डेफिनेटली ये वाला जो वेक्टर है, दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर, इफ यू ऐड देम यू विल गेट दिस वेक्टर, सो डेफिनेटली इट शुड बी कैपिटल R प्लस स्मॉल. तो यहाँ से लाइट रे जब आके यहाँ पे गिरता है, पी पॉइंट पे गिरता है, तो यहाँ पे जो लाइट, आई मीन नॉट लाइट रेज, आई शुड से द एक्स रेज, तो यहाँ पे जो वो वेव्स थे, वो वेव्स क्या थे, स्फेरिकल थे, बट जस्ट बिकॉज दे आर ट्रैवलिंग अ लॉन्ग डिस्टेंस, सो एट दिस पॉइंट दे आर बिकमिंग नियरली द प्लेन वेव्स, they are becoming nearly the plane waves, they are becoming nearly the plane waves. I can draw the plane waves like this way. So as they reach at this point, they are becoming nearly the plane waves. Okay, and I can just write down their amplitude also. Suppose अगर initial amplitude a naught है, अगर इन सारे waves के initial amplitude a naught है, so I can surely draw the amplitude at some different point. Like जब ये जो waves हैं, यहाँ से जो waves है, to the power of say any distance, like so those waves when reaching there, so their amplitude should be like something which is I can tell you that e to the power of I k dot r plus. That's all I can write. K dot r plus. That's all I can write. So जब वेव यहाँ से आके यहाँ पे गिर रहा है, so it will become e to the power of I into k dot capital R plus, e to the power of I into k dot capital R plus, I can say. So that's a plane wave. Actually ये चीज हो ही रहा है ऐसा कि मान लो यहाँ पे तुम्हारा एक सर्कल है, अगर सर्कल के रिपल्स बड़े हो रहे हैं, suppose these are my circles and the ripples are getting bigger and bigger in size, bigger and bigger in size. So basically यहाँ पे अगर तुम जाके देखोगे तो यहाँ पे ये लाइन तुम्हें एज अ स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तुम्हें लगेगा नहीं कि एक बड़ा सा सर्कल का एक पार्ट है. सो एट दिस पॉइंट इट लुक्स लाइक अ स्ट्रेट लाइन. सो जो स्फेरिकल वेव्स जनरेट हो रहे हैं, तो जैसे वो वेव्स बड़े हो रहे हैं, सो द person who is looking from here is get to see a straight line. So for that person it's becoming a plane wave. So I think it's very much clear to all of you कि मैं इसे क्यों plane wave बोल रहा हूँ. मैं ये बोलने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई इस पॉइंट पे जहाँ पे था ये स्फेरिकल वेवलेट जनरेट कर रहा है, but just because it's traveling a very long distance, so as a result of which जो spherical waves यहाँ पे generate हो रहे हैं, वो spherical waves यहाँ पे आके plane wave बन जाते हैं. Now after they have become plane waves over here, ये P point पे जाके गिर रहा है, तो P point पे हमारे पास कुछ scatterers हैं, वो scatterers क्या करेंगे, as a secondary source of wavelets काम करेंगे. That means they will scatter those X-rays and we will get to find out the intensity at some different point. तो हम लोगों को जो चीज ध्यान में रखना है वो है, यहाँ पे मैंने एक सोर्स रखा है जो मेरी क्रिस्टलाइन सॉलिड से काफी दूर में प्लेस किया गया है, जिसकी वजह से ये क्रिस्टलाइन सॉलिड से जो वेव्स आ रहे हैं वो वेव स्फेरिकल वेव्स हैं, बट when they reach the point P on the crystalline solid, they becomes the plane waves. Okay, we can approximate them as a plane waves. अब यहाँ पे P पॉइंट पे बहुत सारे स्कैटरर्स हैं, तो इन स्कैटरर्स से ये जो वेव यहाँ पे आके गिरा हुआ है, ये तुम देख रहे हो QP, ये जो वेव यहाँ पे प्लेन वेव यहाँ पे आके गिरा है, तो ये प्लेन वेव क्या होंगे, स्कैटर होंगे, और स्कैटर होके ये वेव्स कुछ डिफरेंट तरीके का वेव देंगे. I mean how they will scatter, they will from the point P, this plane waves will fall upon the point P, and then P will act as a secondary source of spherical wavelets, and they will fall like this. Okay. So suppose this point is point B. Now I wish to find out what is the जब ये point B ज्यादा दूर में नहीं रखा गया है P से, तो जो P से spherical waves जनरेट हुए हैं, वो spherical waves जब point B में पहुंचेंगे वो भी spherical waves ही होंगे. तो इस पॉइंट के मैंने ज्यादा दूर नहीं रखा है, ठीक है. अगर मैं चाहूं तो इस पॉइंट को थोड़ा सा इधर भी रख सकता हूं.
पॉइंट को मान ले कि मैं इसको मैं ज्यादा दूर नहीं, तो मान ली ये मेरा पॉइंट बी है, ठीक है। इफ दिस इज माय पॉइंट बी, सो आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस टू बी एज this distance to be as r dashed. This is my r dashed and this is my small r dashed. If I take that's my r dash and this is my small r dash, so of course और small r dash लिखने की जरूरत नहीं है, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो like this r is actually some sort of like अगर मैं बोलूँ ये r का डायरेक्शन इस तरफ है, तो this r plus this, so you see this plus this gives me this, so r dash minus r is equals to this, so I can just call it as r dash, just call it as r dashed minus, तो यहाँ पे था ये वाला था r कैपिटल r प्लस स्मॉल r, ये है r डैश माइनस। तो भाई यहाँ से क्या हो रहा है सिनेरियो, इस फिगर को अगर अच्छे से एक बार हम लोग समझ ले तो पूरा चीज इजी हो जाएगा। बेसिकली क्या है कि यहाँ पे हमने एक एक्स रे का सोर्स रखा है, जो सोर्स काफी दूरी पे रखा गया है। ये जो एक्स रे का सोर्स तुम देख रहे हो ये काफी दूरी पे रखा गया है, और इस सोर्स से एक्स रे जाके गिर रहा है इस क्राइस्टलाइन सॉलिड के ऊपर एट द पॉइंट पी। अब जो दूरी पे जाके गिर रहा है तो डेफिनेटली यहाँ से स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट हो रहा है, बट वो स्फेरिकल वेवलेट्स यहाँ पे जाते जाते प्लेन वेव बन जा रहा है। और हम लोगों को पता है कि प्लेन वेव का जो यूजुअल फॉर्म है दैट्स वाई e टू द पावर ऑफ i into k dot r। तो यहाँ पे जो ये डिस्टेंस इसमें ट्रैवल कर रहा है वो कैपिटल r प्लस स्मॉल r है, तो इसलिए i into e to the power of i into k dot कैपिटल r प्लस स्मॉल r। और यहाँ पे हम एक इनिशियल इंटेंसिटी इनिशियल एम्पलीट्यूड ले लेते हैं, सपोज दैट इज माय a naught इज द एम्पलीट्यूड एट दिस पॉइंट q। तो जैसे ये वेव जाके यहाँ पे गिरा है तो ये बन गया है ये वाला, तो प्लेन वेव जाके गिरा है एट द पॉइंट p। नाउ p पॉइंट पे जो एटम्स है उस क्राइस्टल्स का, वो एटम्स आर एक्टिंग एज अ जनरेटर ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स, एज अ सोर्स ऑफ स्फेरिकल वेवलेट्स। तो यहाँ पे जो p पॉइंट पे जो एटम्स रखे गए हैं वो p पॉइंट से एटम्स एज अ सेकेंडरी जो वेवलेट्स है वो जनरेट कर रहे हैं, और वो वेव्स जाके कहाँ पे गिर रहे हैं उसके बाद ये स्कैटर्ड होके बी पॉइंट पे गिर रहा है। मेरा काम है बी पॉइंट पे जो लाइट का इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी निकालना कि व्हाट विल बी द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट सोर्सेज एट द पॉइंट बी। दैट्स ऑल आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट। अब जरा मुझे एक बात बताओ कि यहाँ पे अगर ये डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये कैपिटल आर है, तो ये वाला डिस्टेंस क्यू पी होगा मेरा कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अगर ये मेरा स्मॉल आर है, ये मेरा कैपिटल आर डैश है, तो ये वाला डिस्टेंस होगा कैपिटल आर डैश माइनस आर। ठीक है, अगर यहां तक समझने में बच्चों को कहीं पे भी दिक्कत है तो बच्चा मुझसे बात कर सकता है। हालांकि यहां से स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट हो रहे हैं, और वही स्फेरिकल वेवलेट्स मैं तुम्हें थोड़ा सा बता दूं, यहां से जो स्फेरिकल वेवलेट्स जनरेट हो रहे हैं, ये जो स्फेरिकल वेवलेट्स तुम देख रहे हो जनरेट हुआ है, वही स्फेरिकल वेवलेट्स जब बी पॉइंट पे जा रहे हैं वहां पे भी वो स्फेरिकल वेवलेट्स ही हैं। वो वेव्स चेंज नहीं हो रहे क्योंकि बी पॉइंट काफी पास में ही रखा गया है, बी पॉइंट ज्यादा दूरी पे नहीं। तो जब ये लाइट्स बी पॉइंट पे जाके पहुंच रहे हैं तो स्फेरिकल वेवलेट्स का इक्वेशन होता है e टू द पावर ऑफ i into k dot r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। ये होता है स्फेरिकल वेवलेट्स का वेव इक्वेशन, और प्लेन वेव को होता है e टू द पावर ऑफ i into k dot r। ये चीज तुम लोगों ने शायद बहुत पहले भी पढ़ा है, मैं फिर से रिमेंबर करा देता हूँ कि देखिए अगर मान ले वो वेव r डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है तो प्लेन वेव के लिए जो तुम्हारा फॉर्म होता है दैट इज e टू द पावर ऑफ i into k dot r, e to the power of i into e to the power of I into k dot r। ये होता है प्लेन वेव का फॉर्म। और भाई अगर स्फेरिकल वेव के लिए लिखा जाए तो हो जाएगा e to the power of I into k dot r डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ r। ये स्फेरिकल वेव्स के लिए। तो अब जरा मुझे यहाँ पे एक बात बता कि यहाँ पे जो वेव्स हमारे बी पॉइंट पे जाके पहुंच रहे हैं उस वेव के लिए जो फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन क्या होगा भाई? जो वेव हमारे बी पॉइंट पे जाके पहुंच रहे हैं उस वेव के लिए अगर मैं फॉर्म लिखूं तो वो फॉर्म क्या होना चाहिए? e टू द पावर ऑफ i इनटू, हालांकि यहाँ पे जो वेव वेक्टर है इस वेव वेक्टर को मान रहा हूं मैं k है, और यहाँ पे जो वेव वेक्टर है दैट आई शुड जस्ट राइट अ स्मॉल k। सपोज दिस वेव वेक्टर इज it's a k, I mean basically it's a small k, all I'm trying to write is a small k, so hang on, I'll call it as k vector, and this wave vector I wish to write as k dashed. So this is small k, this is small k dashed. तो यहाँ पे मैं ये क्या हो जाएगा e to the power of I into, hang on, e to the power of I into k dashed dot r। r यहाँ पे क्या है? ये डिस्टेंस है कैपिटल R डैश माइनस r, तो कैपिटल R डैश माइनस r, दैट्स ऑल। कैपिटल R डैश माइनस r डिवाइडेड बाय क्या होगा भाई? डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्टेंस ट्रैवल, तो मॉड ऑफ कैपिटल R डैश माइनस
मॉड ऑफ कैपिटल आर डैश। ये स्फेरिकल वेव जाके गिर रहा है पॉइंट बी। तो भाई हमारे पास स्फेरिकल वेव आ रहे थे, कहां से आ रहे थे, क्यू से आ रहे थे, लेकिन वो वेव जब यहाँ पे जाके पॉइंट बी पे पहुंचे वो प्लेन वेव बन चुके हैं, जिसका ऑन एन एवरेज जो काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होगा वो होगा ए नॉट इंटू द पावर ऑफ आई इंटू जो डिस्टेंस ट्रेवल करा है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो आई इंटू के डॉट कैपिटल आर प्लस स्मॉल। और यहां से जो स्कैटरिंग होके पॉइंट बी पे वेव पहुंच रहा है उसको मैं मान सकता हूं मोर और लेस इसका फेस फैक्टर होगा e टू द पावर ऑफ i इनटू k डैश डॉट कैपिटल r डैश माइनस r डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ कैपिटल r डैश माइनस दैट आई कैन। ठीक है, सो बेसिकली these are my spherical waves, these are my spherical waves, so these are my spherical waves and of course this is my plane. This one is my, so I have my plane wave and my spherical, that's all I can say. I have my plane wave and my spherical. तो अगर ये चीज क्लियर है तो मुझे लगता है बाकी कोई भी पॉइंट पे तुम लोगों को और वो चाहिए। अब हमारा काम क्या है सर, हमारा काम है बी पॉइंट पे जो लाइट जाके पहुंच रहा है उसका इंटेंसिटी निकालना। बी पॉइंट पे जो लाइट जाके पहुंच रहा है उसका इंटेंसिटी निकालना, तो बट इंटेंसिटी बाद में निकालेंगे, पहले एम्पलीट्यूड निकाल लेते हैं। सो लेट्स गो, let's find the amplitude of scattered ray reaching at point B. Let's find out the amplitude of the scattered ray reaching at point. So first जो चीज हमारे पास क्लू है वो क्या है, फर्स्ट क्लू जो हमारे पास है that is amplitude of the waves reaching at B, amplitude of the waves reaching at B will depend upon the amplitude of the wave, will depend upon the amplitude of the wave, amplitude of the wave, amplitude of the wave, amplitude of the wave which were reached at point P, amplitude of the waves reaching at point B। तो इसका मतलब मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं कि यहाँ पे ये जो तेरा B पॉइंट है, B पॉइंट पे जाके जो वेव्स स्कैटर्ड वेव्स जाके गिर रहे हैं, तो इनका एम्पलीट्यूड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, P पॉइंट पे जो वेव्स आके गिरा था, जो प्लेन वेव आके गिरा था, उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करेगा। अच्छा देख, हम आप लोग तुम मुझे ये बता सकते हो कि सर अगर हमारे पास एक प्लेन वेव है तो सर प्लेन वेव का स्ट्रक्चर तो हमेशा ये होता है, मैं थोड़ा सा तुम लोगों को बता दूं सर प्लेन वेव का स्ट्रक्चर तो हमेशा ये होता है कि a इंटू ई टू द पावर ऑफ आई इंटू के डॉट आर माइनस ओमेगा टी, जिसको अगर मैं थोड़ा सा अच्छे से लिखने की कोशिश करूं तो a इंटू ई टू द पावर ऑफ आई इंटू के डॉट आर इंटू ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ओमेगा। तो सर ये ऐसा होता है, लेकिन आपने जो प्लेन वेव का स्ट्रक्चर लिखा है वहां पे ई टू द पावर ऑफ माइनस आई ओमेगा टी क्यों नहीं है? तो भाई मैंने जो प्लेन वेव का स्ट्रक्चर लिखा है वहां पे I just didn't write e to the power of minus I omega t। अगर तुम चाहो तुम लिख सकते हो, अगर प्लेन वेव है इस पार्ट, ये वाला पार्ट मैं चाहे लिखूं या ना लिखूं, बट दिस पार्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट। इसके अलावा तुम वेव नहीं लिख सकते, टाइम के ऊपर वेरिएशन दिखाना ही पड़ेगा। दिस इज द एक्चुअल फॉर्म ऑफ प्लेन वेव। लेकिन मैंने यूजुअली एम्पलीट्यूड की बात करा है, तो बेसिकली एम्पलीट्यूड की बात कर रहा हूं तो मैंने जस्ट स्पेशियल वेरिएशन को लिया है, टेम्पोरल वेरिएशन को मैंने कंसीडर नहीं किया। बट ठीक है, अगर तुम चाहो, मैंने लिखा नहीं है जस्ट बिकॉज आई एम बिट लेजी, but at each point of time this one, whether I write it or I don't write it, this one is always present। ये वाला जो पार्ट है, ये पार्ट हमेशा हमेशा के लिए प्रेजेंट है, मैं चाहे लिखूं या ना लिखूं कोई फर्क नहीं पड़ता, बट ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड इट्स ऑलवेज प्रेजेंट। e to the power of minus i omega t, मैं लिखूं ना लिखूं हमेशा मान लेना कि ये वाला पार्ट प्रेजेंट है, इसके अलावा पूरा वेव कंप्लीट नहीं होगा।
तो बेसिकली इट्स a into the power of i k dot r minus omega t। तो इसको अगर मैंने एक्सप्लिसिट वे में लिखा है तो a into the power of i into k dot r जो स्पेशल पार्ट है एम्पलीट्यूड का, और e to the power of minus i omega t जो टेंपोरल पार्ट है। मैंने टेंपोरल पार्ट को कंसीडर करा है बट सिर्फ लिखा नहीं है। So if I don't write it, but still you have to consider that it is present। मैंने in spite of the fact कि मैंने लिखा नहीं है, लेकिन वो चीज वहां पे है। ठीक है, तो मैं ये थोड़ा सा तुम लोग को बता दिया। मैंने ये आप लोगों को बता दिया, बट ये चीज थोड़ा सा देखिए। तो ये एक चला गया, और दूसरी चीज जो है लाइक एट द पॉइंट पी, तो जो देयरफॉर ए बी, देयरफॉर ए बी मींस एम्पलीट्यूड एट पॉइंट बी डिपेंड्स ऑन ए पी व्हिच इज एम्पलीट्यूड एट द पॉइंट। ठीक है, दूसरी चीज किसके ऊपर डिपेंड करना चाहिए बोल तो? अच्छा भाई मुझे एक बात बता, देख यहाँ पे जो पॉइंट पी है, पी पॉइंट पे क्या है? एटम्स है। एटम्स का मतलब क्या है? स्कैटर। जो एक्चुअली जो प्लेन वेव आके इस पॉइंट पे गिर रहे हैं, यहां से जो प्लेन वेव आके इस पॉइंट पे गिर रहे हैं, उस प्लेन वेव्स को स्कैटर कर रहे हैं। पी पॉइंट पे जो एटम्स है जिसको हम लोग स्कैटरर बोलेंगे, वो स्कैटरर क्या कर रहे हैं कि जो प्लेन वेव आके पी पॉइंट पे गिरा है उस प्लेन वेव को स्कैटर कर रहे हैं। उस प्लेन वेव को क्या कर रहा है भाई? स्कैटर कर। अब मुझे एक बात बता, हर एक एटम जो पी पॉइंट पे मौजूद है, वो एटम क्या कर रहा है? इस प्लेन वेव को स्कैटर कर रहे हैं। अगर नंबर ऑफ एटम्स पी पॉइंट पे बढ़ जाए, इसका मतलब डेंसिटी ऑफ स्कैटरर, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे पी पॉइंट पे जितने एटम्स है अगर वो बढ़ जाए, पहले अगर मान ले 3 थे तो 3 एटम जितना स्कैटर्ड वेव देंगे, अगर उस जगह पे मैंने 15 एटम लाके रखा है पी पॉइंट पे, तो डेफिनेटली स्कैटरिंग ज्यादा होगा। तो जो स्कैटर्ड वेव का इंटेंसिटी है वो बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली पी पॉइंट पे कितने स्कैटरर मौजूद हैं, ये जो पी पॉइंट है तेरा, पी पॉइंट पे कितने स्कैटरर मौजूद है, स्कैटर मतलब कितने एटम्स मौजूद है, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि बी पॉइंट पे जो स्कैटर्ड वेव जाके पहुंच रहा है उस स्कैटर्ड वेव का इंटेंसिटी क्या। So intensity of the scattered wave reaching at point B also depends on the number of scatterers present at the point B. So intensity of the scattered wave reaching at point B also depends upon the number of scatterers present at point B. तो जो scattered wave जाके मेरे B पे गिर रहा है, उस scattered wave का intensity एक तो P point पे जो plane wave आके पहुंच रहा है उस wave के एम्पलीट्यूड के ऊपर या इंटेंसिटी के ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है। और सर सिर्फ यही नहीं, पी पॉइंट पे कितने स्कैटरर्स हैं, अगर नंबर ऑफ स्कैटरर पी पॉइंट पे बढ़ जाए, मान लीजिए यहाँ पे जो तेरा पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट को मैं थोड़ा यहाँ से दिखाता हूँ तेरे को ड्रॉ करके, अगर मान लीजिए ज्यादा नंबर ऑफ स्कैटरर्स रहे यहाँ पे, तो हर एक से सेकेंडरी वेवलेट्स जनरेट होगा, हर एक से सेकेंडरी वेवलेट जनरेट होगा, और ये सारे सेकेंडरी वेवलेट्स एक साथ मिलके फिर स्कैटर्ड वेव देंगे, तो डेफिनेटली स्कैटरिंग इंटेंसिटी बढ़ जाएगा। तो आई थिंक तुम लोग समझ गए कि पी पॉइंट पे अगर नंबर ऑफ स्कैटरर्स ज्यादा हो, नंबर ऑफ स्कैटरर्स मतलब क्रिस्टल सॉलिड में तो एटम्स ही होते हैं, तो अगर एटम्स ज्यादा हो तो डेफिनेटली हमारा जो स्कैटर्ड वेव पे इंटेंसिटी है वो एनहांस हो जाएगा। तो भाई, तो ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड पे पी पॉइंट पे हम लोग नंबर ऑफ स्कैटर बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब क्या कर रहे हैं कि ऑल टोटल डेंसिटी ऑफ एटम्स बढ़ा रहे हैं। तो इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक क्रिस्टलाइन सॉलिड पे डेंसिटी ऑफ एटम्स या डेंसिटी ऑफ स्कैटरर, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम पे कितना स्कैटरर है, उसके ऊपर भी बी पॉइंट पे इंटेंसिटी डिपेंड करता है। So intensity at the point B also depends upon the density of scatterer at the point B. So I can write that the intensity of the wave, intensity of the scattered wave at point B, at point B depends upon the intensity of the scattered wave. I'm sorry, depends upon the intensity of the scatterer present at, depends upon the density of scatterer present at point B, depends upon the density of scatterer present at point B.
तो बेसिकली इंटेंसिटी ऑफ द स्कैटर्ड वेव एट पॉइंट बी डिपेंड्स अपॉन द डेंसिटी ऑफ स्कैटरर प्रेजेंट एट पॉइंट पी। तो सर पी पॉइंट पे कितने स्कैटरर मौजूद हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पी पॉइंट पे कितने स्कैटरर मौजूद है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। पी पॉइंट पे कितने स्कैटरर मौजूद है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि जो वेव मेरा जाके यहाँ पे बी पॉइंट पे पहुंच रहा है स्कैटर्ड वेव उसके इंटेंसिटी क्या। तो डेफिनेटली अगर मुझे टोटल इंटेंसिटी लिखने की जरूरत पड़े तो जरा मैं कैसे लिखूंगा इसको, ए बी मतलब बी पॉइंट पे जो वेव है उसका एम्पलीट्यूड दैट शुड बी इक्वल्स टू ए पी, पी पॉइंट पे जो वेव्स आके गिरा है उसका एम्पलीट्यूड इनटू रो ऑफ आर। रो ऑफ आर क्या है भाई, रो ऑफ आर है पी पॉइंट पे जो वे स्कैटरर्स हैं उसका डेंसिटी, डेंसिटी ऑफ स्कैटरर एट पॉइंट पी इनटू e टू द पावर ऑफ I इनटू, तुम लोगों को तो ये चीज पता ही है, k डैश, k डैश क्यों लिख रहे हो सर, क्योंकि उस जगह पे वेव वेक्टर मैंने k डैश लिखा है, k डैश डॉट कैपिटल R डैश माइनस डिवाइडेड बाय कैपिटल R डैश कैपिटल R डैश माइनस R का डिवाइडेड बाय कैपिटल R डैश माइनस R का। तो AP equals to rho of R into e to the power of I into k dash dot capital R dash minus R divided by capital R dash minus R का whole I can write। अब यहाँ पे बताओ ये तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ, ये तुम्हारा क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ scattered wave at point B। ये तुम लोगों को पता है कि दिस इज द एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड वेव एट पॉइंट P। रो क्या है भाई, रो है डेंसिटी ऑफ स्कैटरर और नंबर ऑफ स्कैटरर पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ scatterer per unit volume at point P, नंबर ऑफ स्कैटरर पर यूनिट वॉल्यूम एट पॉइंट P। और ये वाला क्यों लिख रहे हो सर, ये वाला तो डेफिनेटली ये स्फेरिकल वेव जाके गिर रहा है बी पॉइंट पे। मैंने बताया था कि यहाँ पे जैसे ही वेव्स तेरे स्कैटर्ड होंगे वो स्फेरिकल वेव्स हैं, तो स्फेरिकल वेव्स जाके जब यहाँ पे गिरेगा तो डेफिनेटली वो मुझे वैसे ही लिखने हैं। सो दिस स्फेरिकल वेव्स आर रीचिंग एट दिस पॉइंट। तो स्फेरिकल वेव का जो फॉर्म होता है वो यही होता है, e टू द पावर ऑफ माइनस i ओमेगा t। मैंने लिखा नहीं है लेकिन इसको हमेशा अज्यूम कर लेना कि मौजूद है। ओके, आई डिडंट जस्ट राइट इट बट इट्स ऑलवेज प्रेजेंट। सो यहाँ पे ये सिनेरियो आ जाता है, तो यहाँ पे ये स्फेरिकल वेव है तो इसलिए ये वाला फैक्टर तो सब रहेगा ही रहेगा। तो देखो भाई ये वाला फैक्टर मैंने लिखा है और यहाँ पे इस वाले फैक्टर के साथ ये मैंने इसका एम्पलीट्यूड दे दिया है, दैट इज AP रो ऑफ R into e to the power of I k dash dot R dash minus R divided by R dash minus। अच्छा यहाँ पे एक बार देख ले, जो प्लेन वेव आके यहाँ पे गिर रहा है भाई, ये प्लेन वेव का वेव वेक्टर जो था वो स्मॉल k था, और जो प्लेन वेव यहाँ से स्कैटर्ड होके जा रहा है उस प्लेन वेव का, हालांकि जैसे जैसे डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन चेंज हो गया है तो डेफिनेटली k भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये स्मॉल k डैश, के क्या है, के मेरा वेव प्रोपगेशन वेक्टर है, मतलब जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपगेट कर रहे हैं उस डायरेक्शन में ये वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड होता है 2 पाई बाय लैम्डा। तो भाई यहाँ पे ये मेरा स्मॉल के था, यहाँ पे जाके ये स्मॉल के डैश बन चुका। तो दैट्स व्हाई यहाँ पे जब मैंने प्लेन वेव, जब मैंने स्फेरिकल वेव का फॉर्म लिखा तो यहाँ पे देखो मैंने के डैश लिखा, ठीक है। तो डेफिनेटली एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट पॉइंट बी इज एक्चुअली एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रीचिंग एट पॉइंट पी रो ऑफ r into the power of I k dash dot R dash minus R divided by R dash minus। That's all I can say, okay। सो ऑल द स्कैटरर्स जो मौजूद है वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करते हैं एंड दे एमिट्स द वेव्स एट द सेम फेज। आफ्टर दैट यहाँ पे अगर मैं बात करूं कि AB का एक्चुअल वैल्यू क्या है, तो AB को अगर मैं थोड़ा सा और अगर मैं लिखने की कोशिश करूं तो देख, AB को मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे जो चीज मैंने वहां पे लिखा था, तो AP तो लिखना ही है, AP लिखना है मतलब डेंसिटी द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रीचिंग एट पॉइंट P, फिर रो ऑफ R, रो ऑफ R मतलब डेंसिटी ऑफ द स्कैटरर्स प्रेजेंट एट द पॉइंट P, वेरी गुड। उसके बाद e टू द पावर ऑफ I into k डैश डॉट R डैश माइनस R। भाई एक बात देख, यहाँ पे मॉड ऑफ R डैश माइनस R, अगर मैं ये मान लूं, अगर मैं ये मान लूं कि R डैश इज, अगर मैं ये मान लूं कि R डैश जो है
r डैश जो है दैट इज वेरी वेरी मच लार्जर देन r, अगर r डैश इज वेरी वेरी मच लार्जर देन r, तो हम लोग मान सकते हैं कि मॉड ऑफ r डैश माइनस r क्या होगा भाई, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मॉड ऑफ r डैश, है कि नहीं बता, अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू मॉड ऑफ r डैश, मॉड ऑफ r डैश, ठीक है। मॉड ऑफ r डैश को हम ऐसे लिखते हैं, इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, सिंपली r डैश ये लिख सकते हैं। तो ये चीज अगर ये आ गया है, और दूसरी बात हमें यहाँ पे जो चीज लिखना है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा, देख इसको तू नेक्स्ट लाइन पे लिख सकते हैं। एपी क्या है, एपी है एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रीचिंग एट पॉइंट पी। तो भाई साहब एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव रीचिंग एट पॉइंट पी को मैंने कैसे लिखा है, देख यहाँ पे देख, ये जो वेव था, ये स्फेरिकल वेव जब यहाँ पे आके गिर रहा है, तो उस वेव का स्पेशल जो पार्ट है उसको मैंने क्या लिखा है, ए नॉट ई टू द पावर ऑफ आई के डॉट कैपिटल आर प्लस स्मॉल, ए नॉट ई टू द पावर ऑफ आई के डॉट कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो ये प्लेन वेव है, यही मेरा एम्पलीट्यूड है जो मैं वहां पे जाके लिखने वाला। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ पे एपी की जगह पे मैं लिखूंगा ए नॉट ए नॉट e to the power of I into small k into dot capital R plus small r, कैपिटल R प्लस स्मॉल r। अच्छा यहाँ पे जो ये था, इसको मैंने r डैश लिखा है, तो नीचे r डैश लिख दूंगा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो, into रो ऑफ r then e to the power of I k dashed, okay, dot कैपिटल R डैश माइनस R डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R डैश, ये चीज मैं लिख सकता हूँ, जिसको अगर मैं थोड़ा सा सजाऊं तो ये बन चुका है। ये जो है, ये मेरा कौन सा वाला पार्ट है भाई, ये मेरा प्लेन वेव वाला पार्ट। तो ये प्लेन वेव को मैंने मतलब द एम्पलीट्यूड ऑफ द प्लेन वेव रीचिंग एट पॉइंट पी, जिसको मैंने ऐसे लिखा है, दैट इज एपी। एपी को मैंने ऐसे लिखा है, दिस इज माय एपी, दिस इज माय डेंसिटी ऑफ स्कैटरर एट पॉइंट पी। फिर ये वाला पार्ट तो स्फेरिकल वेव के लिए आ रहा है, यहाँ पे सिर्फ r डैश माइनस स्मॉल r को मैंने कैपिटल R डैश लिखा है, जस्ट बिकॉज़ r डैश इज वेरी वेरी ग्रेटर देन r। तो ये वाला पार्ट अगर हो गया, इसमें थोड़ा सा और सजा रहा हूँ, जरा यहाँ पे देख, कैपिटल R और ये जो k है इसको एक साथ ले लो, तो मैं लिख सकता हूँ ए नॉट e to the power of I into k dot r plus k dashed dot r dashed, ठीक है भाई, इसको मैंने एक साथ ले लिया, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ r dashed, ये वाला r dashed को इधर ले लिया, देन रो ऑफ r वेक्टर e to the power of I k माइनस k डैश, ये स्मॉल k है, ठीक है, k माइनस k डैश डॉट स्मॉल r। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, इस चीज को ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। तो दैट इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव एट पॉइंट बी इज गिवन बाय लाइक दिस, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो अगर एम्पलीट्यूड हम लोग ऐसे लिख रहे हैं, तो इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे, दैट इज एक्चुअली द एम्पलीट्यूड ऑफ द रे रीचिंग एट पॉइंट बी। तो भाई अगर एम्पलीट्यूड को ऐसे लिख रहे हैं, तो इंटेंसिटी को कैसे लिखेंगे, इंटेंसिटी ऑफ द वेव रीचिंग एट पॉइंट बी I at point B is directly proportional to क्या होगा, जो एम्पलीट्यूड है of the wave at point B which is of course a function of R, इस चीज का इंटीग्रेशन करेंगे ओवर डी क्यू बार। ये इंटीग्रेशन करने से क्या होगा, इंटीग्रेशन करने से टोटल एम्पलीट्यूड मिलेगा। क्यों मिलेगा सर टोटल एम्पलीट्यूड, जरा ध्यान से देख, यहाँ पे तूने जो स्कैटरिंग जो तूने लिया था, जो स्कैटरिंग तूने लिया था, वो कहां से लिया था, सिर्फ पॉइंट पी से लिया था, सिर्फ पी से जो स्कैटर्ड होके बी में पहुंच रहा है। तो भाई इस क्राइस्टल में और भी ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जहां से वेव स्कैटर होके बी में पहुंचेगा। तो टोटल एम्पलीट्यूड ऑफ द स्कैटर्ड वेव रीचिंग एट पॉइंट बी, वो क्या होगा, पी पॉइंट से जितना स्कैटर्ड वेव आ रहा है उसको पूरा इंटीग्रेट कर दो थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल। मतलब ये जो पी पॉइंट से निकाल के जो बी पॉइंट पे तुमने लिखा है, ये जो एम्पलीट्यूड मैंने यहाँ पे लिखा है, दिस एम्पलीट्यूड,
दिस एम्पलीट्यूड, ये वाला एम्पलीट्यूड क्या है भाई, ये वाला एम्पलीट्यूड सिर्फ पी पॉइंट से वेव स्कैटर होकर कितना जा रहा है उसका एक वैल्यू है, सिर्फ पी पॉइंट से कितना स्कैटर होकर जा रहा है उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन भाई पूरे क्राइस्टल से जो टोटल वेव स्कैटर होकर जाएगा उसका कैसे निकालेंगे, इस छोटे से एम्पलीट्यूड को ओवर द वॉल्यूम ऑफ क्राइस्टल इंटीग्रेट करके मैं टोटल एम्पलीट्यूड निकालूंगा। टोटल एम्पलीट्यूड जो आया है उसका मॉड स्क्वायर हमारा क्या होगा, इंटेंसिटी। टोटल एम्पलीट्यूड जो आया है उसका मॉड स्क्वायर हमारा क्या होगा भाई, इंटेंसिटी। टोटल एम्पलीट्यूड जो आया है उसका मॉड स्क्वायर हमारा इंटेंसिटी। अब देखिए यहाँ पे ए बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे और एक पेज मुझे चाहिए होता है। देखो ए बी मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा ए बी जो मैंने पहले भी लिखा था, सिर्फ पी पॉइंट से स्कैटर होकर जो आ रहा है दैट इज ए नॉट e to the power of I into k small k dot r plus small k dashed dot r dashed, ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कैपिटल R डैश, उसके बाद रो ऑफ स्मॉल r e to the power of I into k minus k dashed डॉट स्मॉल r, ये चीज है। तो अगर ये मेरा एम्पलीट्यूड है भाई तो इंटेंसिटी क्या होगा, सर आपने ही कहा था इंटेंसिटी इस चीज का मॉड स्क्वायर करके डी क्यूब कर दे, मतलब बेसिकली इंटेंसिटी विल बी ए बी ऑफ आर which is of course a function of r as you can see। अच्छा ये वाला पार्ट कांस्टेंट है क्योंकि कैपिटल R कांस्टेंट है, r डैश कांस्टेंट है, k डैश कांस्टेंट है, तो ये जो पूरा पार्ट देख पा रहा है तो ये पूरा पार्ट क्या है भाई, कांस्टेंट है। अगर ये पूरा पार्ट कांस्टेंट है तो ए बी ऑफ आर से स्मॉल r इज अ वेरिएबल यहाँ पे डी क्यूब आर, ठीक है भाई। इसको इंटीग्रेट कर रहा हूँ ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल, फिर इसका मॉड स्क्वायर कर, तो जैसे ही इस चीज का मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ करके मॉड स्क्वायर करूंगा तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है तो ये वाला पार्ट पहले ही चला जाएगा, तो तेरा जो चीज रह जाएगा वो क्या होगा भाई, जो चीज रह जाएगा वो क्या होगा, वो होगा यहाँ पे जो मेरा ए नॉट है ये ए नॉट का स्क्वायर आ जाएगा, आर डैश जो है इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये वाला पार्ट तो e टू द पावर ऑफ माइनस आई के प्लस आई माइनस आई दिस थिंग प्लस आई दिस थिंग में कैंसिल हो जाएगा, और बाकी वाला जो पार्ट है उसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, मतलब इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल रो ऑफ आर वेक्टर e to the power of I into k minus k dashed dot r d क्यूब r करके इसका मोड्स, इसका मोड्स, तो इंटेंसिटी मेरा इसके ऊपर डिपेंड करेगा, इंटेंसिटी मेरा इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा। तो एक चीज ध्यान से देख लो कि ये जो r डैश है, पहली बात तो इंटेंसिटी मेरा r डैश के ऊपर डिपेंड कर रहा है। r डैश मतलब ये अगर तुम्हारा सॉलिड है यहाँ पे से आके एक वेव यहाँ पे गिर रहा है, ये मेरा रेफरेंस पॉइंट है, तो यहाँ से अगर आके यहाँ पे तुम वेव को देख रहे हो, अगर मान ली ये पॉइंट तेरा बी है, ये पॉइंट पी है, ये पॉइंट वो है, ये तेरा क्यू है, तो ये जो पॉइंट है ये डिस्टेंस मेरा आर डैश है, तो यहाँ से ये डिस्टेंस जितना बढ़ेगा, जितना दूरी पे तुम देखोगे इंटेंसिटी उतना ही इंटेंसिटी घट जाए, तो डेफिनेटली ये होना ही था कि आर डैश का वैल्यू अगर बढ़ेगा तो इंटेंसिटी घटेगा, क्योंकि जितना दूर पे तुम इंटेंसिटी जाके चेक करोगे उतना वो इंटेंसिटी घटता जाएगा। दूसरी बात, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस रो ऑफ r e to the power of I into k minus k dash dot r into d cube mods। तो यहाँ पे मैं ये पूरा चीज लिख सकता हूँ तेरे लिए कि सर एक बात तो यहाँ पे पक्का है कि सर हमारा जो इंटेंसिटी है वो इंटेंसिटी एट IB is directly proportional to 1 by r dash square, ये एक है सर। दूसरी बात IB जो है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मॉड ऑफ इंटीग्रेशन v रो ऑफ r वेक्टर
e to the power of I into small k minus small k dashed dot r dq bar mod square। इसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये चीज है और कुछ नहीं, सिर्फ ये चीज है। अब जरा मुझे एक बात बता, अगर मैं मानू लेट, मैंने माना है स्मॉल के डैश्ड, सॉरी स्मॉल के माइनस स्मॉल के डैश्ड इज इक्वल्स टू माई कैपिटल। अगर ये चीज मैंने माना है मेरा कैपिटल के है, तो ये पूरा इक्वेशन क्या बन जाएगा भाई? ये पूरा इक्वेशन मेरा बन जाएगा, देख IB would be directly proportional to A naught square divided by R dashed square into mod of integration rho of R over the volume V into A naught square divided by R dash square into mod of integration of rho of R e to the power of minus I into K dot R dq bar mod square। तो ये मेरा कैपिटल के है, ये जो मेरा के है ये मेरा कैपिटल के, आई कैन राइट दिस इज माय कैपिटल के। तो इसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। जहां पे के क्या है, कैपिटल के क्या है सर? कैपिटल के है मेरा स्कैटरिंग वेक्टर known as small k minus small k, ऐसे लिखते हैं स्मॉल के माइनस, ठीक है। तो अगर ये मेरा स्कैटरिंग वेक्टर है भाई, जरा इस चीज को ध्यान से देखते हो, इस चीज को देख के लगता नहीं कि पहले कहीं पे तुम लोगों ने देखा है। ये चीज क्या है? एक्चुअली ये चीज है इंटीग्रेशन ऑफ रो ऑफ आर वेक्टर e to the power of I into k dot r into d cube of r। ये चीज तूने पहले कभी देखा है? mod square over the volume V। ये चीज क्या है? That is nothing but the Fourier transform of the density of scatterer, Fourier transform of the density of scatterer। तो intensity at point B is directly proportional to mod square of the Fourier transform of density of scatterer। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक डिस्कवरी था जिसके ऊपर हम लोग बहुत सारे बात कर रहे हैं कि जो इंटेंसिटी है वो क्या है भाई? इंटेंसिटी एट द पॉइंट बी हम लोग बता सकते हैं, जोर से चिल्ला के हम लोग बता सकते हैं अब कि हमें ये चीज पता है कि इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट पॉइंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू mod square of the Fourier transform of रो ऑफ, इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म के मॉड स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फूरियर ट्रांसफॉर्म के मॉड स्क्वायर के साथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है। सो दिस इज फूरियर ट्रांसफॉर्म, जिन लोगों को नहीं पता, ऑफ रो ऑफ आर वेक्टर। कैसे लिखते हो तुम लोग? फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो ऑफ आर वेक्टर को लिखते हैं सर फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ रो ऑफ आर वेक्टर को हम लोग लिखते हैं इंटीग्रेशन ओवर द वॉल्यूम v रो ऑफ r डैश्ड into e to the power of I into k dot r into d cube of, ये मेरा फूरियर ट्रांसफॉर्म है जहां पे k क्या है सर? k मेरा स्कैटरिंग वेक्टर है। फूरियर ट्रांसफॉर्म किसके रेस्पेक्ट के लिए हो? इज टेकन with respect to k वेक्टर, जो मेरा स्कैटरिंग वेक्टर गिवन बाय k माइनस। तो आई थिंक यहां तक ये चीज आज की क्लास के लिए था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करेंगे, बट आज जो चीज हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा
वो आई थिंक सबके समझ में आ गया होगा कि भाई हमारे पास जो यहाँ से जो हमारे वेव्स आते हैं, यहाँ से जो हमारे वेव्स आते हैं वो प्लेन वेव्स हैं, यहाँ से जो वेव्स आते हैं वो प्लेन वेव्स हैं, लेकिन यहाँ पे पहुंचते पहुंचते वही प्लेन वेव्स स्फेरिकल वेव्स बन, यहाँ से जो आते हैं वो स्फेरिकल वेव्स हैं स्कैटरर से, सोर्स से। सो ये स्फेरिकल एक्स रेज बिकम्स प्लेन वेव, प्लेन एक्स रेज एज दे रीच अ लॉन्ग डिस्टेंस, दे ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो यहाँ पे जाके ये प्लेन वेव का एम्पलीट्यूड ये हो जाता है। यहाँ पे टू द पावर ऑफ माइनस आई वाला टी मौजूद है, मैंने लिखा नहीं। उसके बाद की पॉइंट से स्कैटर होके, ये जो पी पॉइंट दिख रहा है तुम लोग को, यहाँ से स्कैटर होके वेव यहाँ पे पी पॉइंट पे जाके गिरता है। यहाँ पे पी पॉइंट पे जो एटम्स है जिसको हम लोग स्कैटरर कहेंगे उस क्रिस्टलाइन सॉलिड का, वो एटम्स एज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ वेवलेट्स काम करते हैं और वो स्कैटर करके वेव को यहाँ भेजते हैं। हमारा काम था बी पॉइंट पे वेव का इंटेंसिटी निकालना, तो इंटेंसिटी से पहले हमें एम्पलीट्यूड निकालना पड़ेगा। तो हमने देखा कि वो जो एम्पलीट्यूड है वो पी पॉइंट पे जो प्लेन वेव आके गिर रहा है उसके एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है, एंड पी पॉइंट पे जो स्कैटरर है उसके डेंसिटी मतलब कितना स्कैटर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो डेंसिटी ऑफ स्कैटरर के ऊपर डिपेंड करता है और एम्पलीट्यूड के ऊपर डिपेंड करता है। और यहाँ पे जो वेव आके गिर रहा है ये स्फेरिकल वेव है, तो ये वाला टर्म तो मौजूद ही होगा। तो दिस थिंग multiplied by this thing multiplied by density of scatter at point P giving me the amplitude at point B, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है। देख ये एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P, ये वाला स्फेरिकल वेव वाला पार्ट और यहाँ वाला डेंसिटी ऑफ स्कैटर, ये मल्टीप्लाई करके ए बी पॉइंट पे मुझे एम्पलीट्यूड मिला। अब एपी को अगर मैं लिखूं तो ऐसे लिख सकता हूं, लिखने के बाद ये मेरा डू ऑफ रहेगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, मैंने आर डैश को आर डैश कंसीडर कर, तो ये मेरा ये आ गया टोटल एम्पलीट्यूड। अगर एम्पलीट्यूड आ गया तो इंटेंसिटी बहुत आराम से निकाल सकते हो। इंटेंसिटी इज पी पॉइंट से जो वेव जाके एम्पलीट्यूड दे रहा है, मुझे टोटल इंटेंसिटी चाहिए जो बी पॉइंट पे पहुंच रहा है वेव का। तो बी पॉइंट पे तो वेव सिर्फ पी पॉइंट से स्कैटर होकर नहीं पहुंच रहा है, पूरे जो क्राइस्टलाइन सॉलिड है उसके हर एक पॉइंट से स्कैटर होकर पहुंच रहा है। तो टोटल वेव का एम्पलीट्यूड जो बी वेव में जाके पहुंच रहा है आफ्टर गेटिंग स्कैटर्ड बाय द होल क्राइस्टल, कैसे निकालूंगा, इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल, इंटीग्रेट कर दूंगा ओवर द वॉल्यूम ऑफ द क्राइस्टल, फिर जो टोटल एम्पलीट्यूड मिला उसका मॉड स्क्वायर इसमें। तो ऐसे करने के बाद मैं देख रहा हूँ कि ये चीज ये आ रहा है भाई। यहाँ पे ये जो चीज है देखो, यहाँ पे ये वाला टर्म कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, फिर जैसे मॉड लूंगा तो ये वाला टर्म वैनिश हो जाएगा। e to the power of I into k dot r plus k dash dot r, k नॉट बाय r डैश का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे ये वाला टर्म रहेगा। तो इंटेंसिटी एक तो 1 बाय r डैश के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, r डैश के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है r डैश के स्क्वायर के साथ, और दूसरी चीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इस टर्म के साथ। ये टर्म क्या है हम थोड़ा विस्तार में देखेंगे। ये वाला टर्म एक्चुअली मेरा ये है, तो ये वाला टर्म इज नथिंग बट द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्कैटर। यहाँ पे मैंने कैपिटल के लिखा है स्मॉल के माइनस स्मॉल के डैश को। तो ये जो टर्म है, ये टर्म क्या है, दिस इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ द डेंसिटी ऑफ स्कैटर विद रिस्पेक्ट टू। तो यही चीज मैंने यहाँ पे फिर से लिखा है कि जो इंटेंसिटी एट पॉइंट बी है वो फूरियर ट्रांसफॉर्म के ऊपर डिपेंड करता है। फूरियर ट्रांसफॉर्म व्हाट, फूरियर ट्रांसफॉर्म द डेंसिटी ऑफ स्कैटर। सो दैट्स, आई थिंक दैट इज एनफ फॉर टुडे। ऑन द नेक्स्ट क्लास वी विल अगेन कंटिन्यू विद दिस थिंग। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इफ देयर इज एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी, otherwise we can end this. Tell me if you have any questions. Okay then, I'm ending the class. Thank you very much.